بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چکوال پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، صحت اور تعلیم یہ دو ایسے شعبے ہیں جن کو بہت اہمیت حاصل ہے مہذب دنیا میں، اور ایسے ممالک جو کہ ترقی یافتہ ہیں وہ ان شعبوں پر بڑا انویسٹ کرتے ہیں. خاص طور پر صحت کو لے کر ہر جگہ اس پہ کافی خرچہ کیا جاتا ہے. ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں، ڈاکٹرز رکھے جاتے ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہے اور دیگر سہولیات ہے. کیونکہ صحت اچھی ہوگی تو انسان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، وہ جس شعبے میں بھی ہو اچھا پرفارم کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحت کو لے کر مختلف ممالک میں بہت زیادہ انویسٹ کیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہ جس طرح معیشت سے حکومتیں اور حکمران لا تعلق سے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جو عوام کی صحت کو لے کر ان کی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی اور اس میں زیادہ انویسٹ نہیں کیا جاتا. ہم ڈسٹرکٹ چکوال کا ذکر کر لیتے ہیں. یہاں پر سب سے بڑا ہاسپٹل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال موجود ہے، لیکن ڈاکٹرز کی کمی ہے، پیرامیڈک سٹاف کی کمی ہے، دیگر اور مسائل ہے صفائی کو لے کر، پانی کو لے کر، اور کئی ایسے مسائل ہیں جو آج اس لائیو پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ پہلی دفعہ حقائق آپ کے سامنے بھی آئیں گے. آج ہم عمومی جو صحت کے مسائل ہیں، صحت کی سہولیات ہے، اس پر گفتگو کریں گے. اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب سینئر صحافی خواجہ بابر سلیم سے، جبکہ لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی خالد ملک اور راجہ افتخار بھی موجود ہے. خالد صاحب کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، صحت اچھی ہوگی تو تبھی بندہ وہ کسی کام کا ہے. لیکن اس پہ جتنا پیسہ خرچ ہونا چاہیے یا حکمرانوں کو جتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. وہ تو میر صاحب ابھی یہ فقیر خالد ملک صاحب بھی درمیان موجود ہیں. اسپتال میں تو بھی وہ ذرا اعداد و شمار کے ساتھ، اور بالکل ہم کئی دفعہ آگے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ نام کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چکوال ہے. اور بالکل، اور خاص کر جب آپ یہ ماہر ڈاکٹروں کی کمی ہے، جو ماہر ڈاکٹر ہیں تو وہ ادھر پرائیویٹ کلینک ہیں تو سب کو ترغیب دی جاتی ہے کہ مطلب جا کے شام کو جو کلینک ہے وہاں دکھائیں. تو بہرحال یہ اس پہ ذرا فقیر خط تو میں یہ لاہور میں جو یہ ڈرامہ اور تماشا ہو رہا ہے اس پہ میں ضرور بات کروں گا. اور یہ ابھی دیکھیں کس طرح ایک پورا کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب، منتخب وزیر اعلیٰ، منتخب ایک اسمبلی، اور دیکھیں عجیب کھیل ہے کہ مطلب ہے کہ ہٹا دو، گرا دو، تحلیل کر دو، اور پھر وہ کر بھی دی گئی. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی بھی نہیں اطلاعیں آ رہی ہیں ڈی نوٹیفائی. اس سے پہلے لفظ ہی نہیں سنا ڈی نوٹیفائی. بھائی ایک منتخب اگر وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ہے تو وہ ڈی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا آپ نے اس ملک کو، آئین اور قانون کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ 3 سطروں کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے ایک 12 کروڑ عوام کے ذاتی نہیں جی، پوری اجتماعی جو ایک مطلب ہے سارا پورا ایک کھیل ہے، یہ کھیل تماشا ہے پورا. اللہ معاف کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جب ہم ادھر کئی دفعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی واد ہے، بے واد ہے، اللہ کا اپنا قانون ہے، اپنا نظام ہے. تو یہ اب سارے بالکل، میں الحمدللہ میرا یہ نچوڑ ہے کہ یہ اب اللہ کے وہ کہتے ہیں نا وہ کار اور جبار، یہ اللہ تعالیٰ کے 100 صفتیں ہیں. تو یہ اس کو یہ آپ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنا کار و جبار، اور وہ جو ایک اللہ معاف کرے مطلب ہے کہ بالکل یہ انہوں نے آخری اس پہ جو ہے نا، تو آپ 11 جنوری تک یہ کیا کریں گی، کیا مطلب ہے کہ کوئی غیر یقینی اور جو بے یقینی صورتحال ہے وہ کوئی دور ہوئی ہے، وہ بلکہ اور مزید گمبھیر ہو گئی ہے. آج ابھی میں ابھی رکشے پہ آ رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے جی ساری چیزاں کوئی تھوڑی تھوڑی تلے آئی ہیں، پیاز جڑا نہیں 200 تو تلے نہیں پہ جانا. یہ ابھی عام آدمی آٹا 120 125 روپے کلو، وہ تو ہم ادھر کئی دفعہ تو وہ بھی اسی طرح. تو وہ یوٹیلٹی اسٹور پہ کلیم کر رہے ہیں جی 40 روپے 50 روپے سستا دستیاب ہے، مگر دستیاب ہے تو جا کے ادھر حالت دیکھیں انسانیت کی جس طرح تبدیل کی جا رہی ہے، خاص کر خواتین کی ادھر یوٹیلٹی اسٹور کے بعد. تو وہ ادھر بھی جب وہ 3-4 گھنٹے سارا لائن میں تکلیف دے. اور ابھی یہ دھند اور یہ سردی شروع ہوئی ہے، اللہ معاف کرے، دھوپ میں بیٹھو تو پھر بھی سردی لگ رہی ہے. تو یہ سارا ادھر آپ ان لوگوں کی اس کی بے بسی کا، اور 2 وقت کی روٹی جب ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے تو یہ انسانیت کی بھی آپ تبدیل کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی یہ طریقہ نہیں ہے. اور آپ پھر آپ دیکھیں گے تاریخ پہ تاریخ ہے. یہاں تو یہ ہے نا کہ کوئی چلو جی
अदालतों में बड़ा कोई इंसाफ हो रहा है और बड़ा, तो वो देखने, वो अभी आज सुबह बंदा एक मुझे उन्होंने कहा ये साहब नूरा कुश्ती है, तो लोग भी आप मतलब सारा एक बिल्कुल शऊर और इतराम रखते हैं कि ये साहब एक खेल तमाशा है, एक बिल्कुल तयशुदा है, इंज नहीं जी, इंज आ जाओ जी, तो ये इंज उंज करके ये इन्होंने सारा ये अभी नहीं करी, तो वो सारे मिठाइयां बांट रहे हैं। कल जो फैसला आया ये देखे ना, तो मतलब है कि सारे उन्होंने कहा ये अदालती निजाम है, ये तो पंचायत है, 20 आठ 10 बंदे पंचायती प्रधान है, अकायद सामने रखे, 1 मिनट में फैसला हो जाता है। तो ये अब ये आइन और कानून कोई नहीं, ये पंचायती काम आगे चल पड़ा है, सारों को राजी करो जी। पंचायती उसमें अमूमन यही होता है कि जिसकी थोड़ी सी गलतियां चल गई हो माफी मांग, अगो ना करी तो विकस में अगो ना करेगा, तो ये वो एक इधर ये सारा ये मुल्क के 22 करोड़ अवाम के साथ ये खेल तमाशा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, यही खेल तमाशा जारी है और पूछा जा रहा है कि बता तेरी रजा क्या है, उसके मुताबिक ही फैसले किए जा रहे हैं, आइन और कानून के ही पीछे रह गया। धुंध की बात ख्वाजा साहब ने की है, धुंध और सर्दी का ये मौसम है और इस मौसम में बीमारियां भी वो उसकी इंसानों को अपनी लपेट में ले लेती हैं, बीमारियां पहले से ज़्यादा हो जाती हैं। और जिस तरह हम सेहत को लेकर अभी डिस्कशन कर रहे हैं, लाइव स्टूडियो में सीनियर साफी खालिद मलिक मौजूद हैं, इस शोबे पर बड़ी इनकी गिरफ्त है, पूरी मालूमात रखते हैं। मलिक साहब, एक तरफ तो आम बीमारियां जो हमारे सामने मौसमी बीमारियां हैं वो तो हर साल आती हैं, लेकिन देखा गया है कुछ सालों से कि गुर्दों की बीमारियां वो बढ़ती जा रही हैं, दिल के अमराज बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ दीगर और बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल के हवाले से पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर क्या सहूलियात दस्तियाब है, क्या कमी बेशी है और किस तरह इस सारे मामले को मजीद बेहतर किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, यानी उन लोगों की आप आज आवाज़ बने हैं जिनका खुदा के सिवा कोई नहीं है। जहाँ तक बात की आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की, मैं आपको ये एक बात पूरी जिम्मेदारी के से बता रहा हूँ कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीजों की तादाद इंतहाई कम हो गई है। यानी वो एक शोर शराबा था कि बड़ा क्राउड है जी, बड़े मरीज आ रहे हैं जी, मैनेज नहीं हो रहा, वो सरासर नारा इनका गलत हो गया है। अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज आना छोड़ गए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहां से मीर साहब आप ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा लूटमार कर रहा है अपने अपने अंदाज में, अपने अपने हिसाब में। अब एक झाड़ू वाला है, झाड़ू वाला भी जो उसकी ये पोजीशन बनी है कि अगर उसके पास कोई बंदा पूछता है कि यार ये मैंने किधर जाना है, ये क्या करना है, तो वो उसकी भी उसकी डिमांड मांगेगा, तो उसे कहेगा ठीक है इतने पैसे मुझे दो तो मैं ये काम कर देता हूं। इस तरीके से गार्ड बैठे हुए हैं। अब ये ऐसे लोग हैं कि ये मौके पे पकड़े भी गए हैं, लोगों की शिकायत ले गई है, इनकी वो पेशगियां भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद इनके कान पे जूं तक नहीं रुकी। वो कहते हैं कोई हमारा क्या कर लेगा। और सबसे बड़ी बात एक और कि इधर एक टाउट माफिया जो है वो पूरे तरीके से अपने पंजे गाड़ चुका है हॉस्पिटल में। यानी हॉस्पिटल में आप देख लें कि सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट आए, स्टार्टिंग में ही उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, मिसबिहेवियर किया जाता है कि इंसान जो आधा तो वो कहता है कि यार मैं अब मुसीबत तो चलो अल्लाह की तरफ से आई है, अब ये आगे मेरे साथ क्या हो रहा है। यानी वो मुतलका वार्ड या उस रूम तक पहुंचने से पहले पहले वो उसमें बिल्कुल जो है ना वो इखलाकी तौर पर इतना वो खामोश हो जाता है कि वो नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रहता। और उसके आगे क्या है कि यार मैं समझता हूँ देखे मतलब सब हमारे भाई हैं, मैं किसी के नहीं कर रहा हूँ, चाहे गार्ड हो चाहे सफाई वाले हो, अपना अपना काम सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन मीर साहब देखे ना, हमारा काम है आवाज उठाना, इस पे अमल दरामद करने वाले और लोग हैं। ये मालूम साहब अभी ये 3 डायलिसिस मशीनों से कोई इम्प्रूवमेंट हुई है? ये जो 1 करोड़ से ज्यादा का डोनेशन डायलिसिस मशीनें इस वक्त बाबर साहब हॉस्पिटल में पहले 8 थी, अब 3 बढ़ गई और काम हो रहा है उसमें कोई नहीं। लेकिन उसमें काम कैसे हो रहा है, यानी उसके लिए जो किट होती है वो मरीज मतलब हॉस्पिटल में कभी मिलती है, 1 दिन मिली 2 दिन मिलती है, तब उन्हें कहेंगे किट अपनी लेके आए। अच्छा, वो कितने की? वो किट तकरीबन 1800 2000 2200 की, अब महंगी होगी थोड़ी। डायलिसिस कितने में हो रहा है? डायलिसिस के लिए कोई नहीं है। प्राइवेट कितने में? प्राइवेट डायलिसिस जो हो रहा है वो तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए में हो रहा है ना। लेकिन अभी तक जो है ना मतलब डायलिसिस देखे ना, वो तो प्राइवेट, चकवाल में प्राइवेट डायलिसिस कहीं भी नहीं हो रहा। मास हो को खामोशी है। एक वो
अब्बासी हॉस्पिटल है, वहां पे भी फ्री हो रहे हैं, उन पे भी यही है कि ठीक है जी अपनी किट ले आए, हम आपको मशीन पे लगा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इज्जत नफ्स को यहाँ पे जो आने वाले गरीब लोग हैं उनको कैसे करना है, और ये सारी की सारी मैं बड़े आज खुले अल्फाज के साथ कह रहा हूं, ये मिसमैनेजमेंट हो रही है। मिसमैनेजमेंट क्या हुई है, अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब हैं, अब वो उनके दायरा इख्तियार में नहीं है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक मामले को ठीक करें। मैंने 50 मरतबा उनको मैसेज किए हैं कि न्याई साहब ये मामलात हैं, आप इस पे गौर करें, लेकिन वो कोई नहीं। बस तो जो पानी का मसला उठाया था डीसी साहब के पास, क्या हुआ उसका? पानी कुछ भी नहीं, जूं को तू पड़ा हुआ है। अच्छा, अभी जी जी, मतलब एक चीज मैं साथ ऐड कर दूं कि शोबा वैसे तो शिकायत काफी हवाले से मौजूद है, लेकिन शोबा दायमी को लेकर या माँ बच्चे के हवाले से मामलात है, उस शोबे के हवाले से बड़ी शिकायत। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब वहां पे मेरे साहब ये हालात है कि अब डॉक्टर जो ड्यूटी पे हैं उनके हाथ में मोबाइल है, अक्सर अपने टाइम पे नहीं आते, और उनकी ना आने से पहले एक टाउट माफिया वहां पे एक्टिव हुआ है। मतलब प्राइवेट लोग जो हैं वो मर्दों खवातीन दोनों काम कर रहे हैं, और वो जब ऐसे मरीज देखते हैं, जब मरीज परेशान होता है, वो दाएं बाएं दौड़ता है, तो वो उनके पास चले जाते हैं हमदर्द बन के, और उनको वो तरगीब देते हैं कि आप आए फलां डॉक्टर के पास, पैसे लगाएं, अपना काम करें, अपने क्यों मरीज को मार रहे हैं, क्यों उनको खराब कर रहे हो। उन लोगों को डरा डरो के वो उनको लेके जाते हैं, और 5,000 रुपया फी कस मरीज जो है वो डॉक्टर उनको दे रहा है। इस वक्त भी मैं बिल्कुल, अगर किसी को कोई शक हो मेरे साथ राब्ता करे, आपके साथ राब्ता करे, मैं सामने आपको बंदे दिखा देता हूं कि वो बंदे कर रहे हैं सारे सरेआम, और उसमें जो है हर शोबे में सर, हाँ जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, खवातीन भी बैठी हैं, तो वो बंदों को लेके जा रही हैं, मर्द भी हैं वो उनको लेके जा रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, और बार बार इंतजामिया के नोटिस में ये चीज लाई गई है। और दूसरी बात जो आपने वो, इसमें खैर काफी लंबी गुफ्तगू खत्म ना होने वाली, लेकिन एक जो खुशआइन बात है कि वो जैसे कहते हैं ना बाबर साहब चकवाल मंजिलों की सरजमीन है, तो अभी मतलब गुलाम मुर्तजा साहब मुझे पता चला है हॉस्पिटल से कि वो एक उधर एक पानी का बोर बड़ा जो है वो करवा रहे हैं, तकरीबन 800 फुट गहरा, उसमें पानी जो है ना नीचे अभी आ रहा है, वो तकरीबन तकमील होने वाला है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ पानी की जरूरियात जो है वो पूरी हो सके। ठीक हो गया। ये मुखिया हज़रात अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, माजी में भी हमने देखा है कि मुखिया हज़रात काफी ताबन करते हैं, बस मामलात सरकारी सतह पर जरा बिगड़ जाते हैं। सरकार को जिस तरह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए वो शायद इस अंदाज से नहीं कर पा रहे। राजी अफ्तार, इलाज मुआवजे की बात हो रही है, जब हुक्मरानों ने अपना इलाज ही बाहर करवाना है तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि इन हॉस्पिटल पे खर्चा करें, इनको अपग्रेड करें, क्या कहेंगे? शुक्रिया जी मीर साहब। आज का जो आपका टॉपिक है मेडिकल का, बिलखसूस जो है वो DHQ चकवाल, ये आज की पहली मरतबा हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी बेशुमार इस पे प्रोग्राम भी हो चुके हैं, खबरें भी लगा चुके हैं, कॉलम भी लिख चुके हैं। ये बहुत सारे मामलात हैं जिनको देखने की जरूरत है। जो आपने जिस तरफ इशारा किया है वो बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितने भी हुकूमतें आपकी आई हैं पाकिस्तान में, किसी भी हुकूमत की, कहा वो मुस्लिम लीग नून की थी, 4.5 साल PTI की थे, पीपल पार्टी की थी, आवाम को सहूलियात इलाज मुआवजे की मुहैया करना ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं रहा। और उसकी बड़ी वजह आपने खुद बयान कर दी है कि क्योंकि अगर इनको पेट में भी दर्द होना है, इनके नाखून में भी दर्द होना है, तो इन्होंने टिकट कटा के दुबई निकल जाना है या UK या दूसरे मुल्कों में, इनके पास वीजे लगे होते हैं, पासपोर्ट उनके पास हैं। तो यही वजह है कि ये जो मसाइल हैं ये इनसे बिल्कुल नाबल्द भी है, उनको पता भी नहीं है, और ये उनकी जो है ना वो सॉल्व करने में जो है अपना किरदार अदा करते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था उस वक्त, वज़ीर थे पंजाब के, तो उन्होंने एक ब्लॉक का यहाँ पे इफ्तिताह किया था DHQ में, नया ब्लॉक, उन्होंने नई बिल्डिंग एक ब्लॉक उन्होंने बनाया था, उसमें टेरेशें बड़ी लगी, सारा कुछ मामला। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक खिताब किया था, उसमें उन्होंने ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है इसको पंजाब का मॉडल हॉस्पिटल करार दिया था अपनी तकरीर में। तो ये आज से काफी साल पहले की बात है। मैंने उस वक्त मैंने उस वक्त एक इस पे कॉलम देखा था 2018 में, अभी मेरे पास सेव है, चकवालामे में भी लगा था, दूसरे कौमी खुराक में भी लगा था। तो मैंने उसमें एक सेंटेंस ये डाला कि मियाँ साहब अगर ये वाकई है बताओ आपके ये पंजाब का मॉडल हॉस्पिटल बन गया है तो मेहरबानी करके मियाँ साहब जो बड़े मियाँ साहब हैं उनको ज्यादा बता देता है, आप उन्हें UK भेजा तो चकवाल भेजा कर हमारे हॉस्पिटल में। ये कितना शर्म का मकाम है कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हमें एक राइजिक इंजेक्शन वो भी नहीं मिलता। फिर उसके बाद जो मसला है, ये दो किस्म के मामला है। एक वो जो गवर्नमेंट ने
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को प्रोवाइड कर दें, और दूसरा जो फकीर साहब इशारा कर रहे थे मिस मैनेजमेंट जो है और जो इनकी इंतजामिया है उनको कंट्रोल करने के मामला हैं। अब पहले मामले में ये देखें कि क्योंकि हुकूमतों में खालिद साहब ने कहा कि खेल तमाशा, वो वाकई खेल तमाशा चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई एक सुप्रीम कोर्ट भेज रही है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर वो इस जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसकी वजह से जितने भी अवामी जो मसाइल हैं वो पस चले गए हैं। महंगाई, गुरबत, अशिया खुदमोश, ये हम रोजाना यहाँ रोवर होते हैं, लेकिन वो इससे क्योंकि उनका अदालत नहीं है, उनकी तरजीहात और उनके मामलात और चाह रहे हैं, इसलिए अदालत जो बहुत पीछे चली है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में आगे भी हम जिक्र कर चुके हैं कि न्यायी साहब जो है वो, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने कहा था ये शरीफुल नफ्स इंसान है। अब शरीफुल नफ्स होना सिर्फ काफी नहीं है। अब बहुत सारे वहां पे जो मिस मैनेजमेंट जो इशारा कर रहे हैं फकीर साहब, वो क्योंकि एमएस जो है ना, देखें उनके दायरे इख्तियार में, उन्हें अपनी थोड़ा सा कायदाना जो सलाहियत है उनको दिखाना पड़ेगा, सामने खुल के आना पड़ेगा, ना वो किसी से ब्लैकमेल हो। जो अंदर काम करने वाले हैं, जो छोटे छोटे अंदर शोबे बने हुए हैं, जैसे ये कह रहे हैं जी कलारी का डिपार्टमेंट है, उसके बाद जो गार्ड बैठे हुए हैं, उसके बाद लेबोरेटरी के टेक्नीशियन है, वो वाकई में जोर है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको मुख्तसर एक मिसाल दे देता हूँ कि एक माह या 2 माह कबल वो टेस्ट के लिए मैं लेबोरेटरी में गया, तो वहां पे एक काफी एज का बंदा था, तो वो जनाब उसके साथ उसने बातों में तलब कलामी की, उसको मैं गलती से तारों कहा बेटा कि जनाब ये आप ऐसा नहीं कर रहे, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो थोड़ा सा ये आप लोगों को जो कर रहे हैं ये आप सही नहीं कर रहे। उन्होंने कहा तू जर्नलिस्ट है और साहबी तो ब्लैक मेलर है। मैंने कहा जनाब अच्छा मैंने क्या आपको ब्लैक मेल किया जी? मैंने कहा यार आप आ जाओ एमएस साहब के पास। उसको मैं पकड़ के फकीर साहब एमएस साहब के दफ्तर में ले गया। मैंने कहा एमएस साहब ये बंदा ये मेरी बात की है, उसका ये मुझे जवाब मिला कि साफी ब्लैक मेल हो रही तुम लोग। तो मैंने कहा आप इसको ये बताया कि इतनी खबरें आपकी लगाई आप लोगों ने, कितनी खबरें आपकी लगाई हैं, जितने पैसे आज तक आपने मुझे दिए हैं, 1000 दिया या 1 लाख दिया, इसको बताएं। उसने कहा तुमने ऐसे क्यों बात की, इन्होंने तो आज तक 1 रुपया हमसे नहीं लिया, खबरें भी लगाते सर। तो मैं ये कहता हूँ कि ये छोटे छोटे हैं कलारी का, ये उसका क्या होगा राय साहब, क्या होगा? यही नुकसान है मीर साहब जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं कि उनके नोटिस में एक बात आती है, अब जो जितने भी वहां पे गार्ड हैं क्या कर लेंगे भाई, क्या कर लेंगे? जो बताओ, जिसको मर्जी बताओ। बेसिक जो अस्पताल के मामलात खराब होने वाले हैं वो ये नुकता है जिस पे अभी राय साहब ने बात की है कि उनको जो है ना वो एक्शन नहीं लेते। ठीक हो गया। लाइव स्टूडियो में जी सीनियर साथी ख्वाजा ने भी ज्वाइन कर ली है। ख्वाजा साहब, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ आम आदमी करता है इसका, महंगाई जो बढ़ती महंगाई है उसमें उनको यहाँ जरा सस्ता इलाज दस्तियाब है, लेकिन क्या वजह है कि ये हॉस्पिटल बिल्डिंग तो बना दी जाती है लेकिन वहाँ जो इलाज मुआवजे की सहूलियात है दस्तियाब नहीं। बिल्डिंग तो बना दी जाती है शब भर में, मतलब ये इतनी आला, मतलब अभी बिल्डिंग्स हैं उसमें टाइल वर्क आ गया है और अंदर जाएं आपकी आंखें खीरा हो जाती हैं। तो मगर एक गरीब के लिए वहां पे एक इंजेक्शन की भी वो सहूलत मतलब मौजूद नहीं है। अभी जिसका अभी बार बार जिक्र हो रहा है, एक तो हमारे पाकिस्तान में ट्राउट मछली बड़ी मशहूर है, तो दूसरा टाउट जिसकी ये खालिद साहब अभी जिक्र कर रहे थे, ये सरकारी महकमों में ये टाउटिज्म क्यों पनप रहा है, ये फल फूल रहा है कि वो जो कुर्सी पे जो बैठा हुआ है उस डिपार्टमेंट का वो जो अफसर है वो रिलीफ नहीं देता है, तो बाहर जो है ना वो टाउट बैठा हुआ है, उस जिसकी रसाई टाउट के साथ हो गई, उसने टाउट से जो है ना वो मुकमका कर लिया, तो वो उसका काम जो है ना वो करवा देगा इस सरकारी महकमों में। तो ये टाउटिज्म जो है ये फल फूल रहा है, ये भी हॉस्पिटल में मतलब मौजूद है। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे रंडी रोना रो रहे हैं कि मैं खासकर यहाँ पे कि ये चौपट राज है, चौपट बादशाह था शहबाज कलंदर के वक्त, और उस वक्त जो दौर चल रहा था यही था बिल्कुल, ये निजाम जो अभी चल रहा है, कोई किसी का काम नहीं हो रहा, कोई दुआई नहीं है, ये जो सारा उस वक्त था ना ये निजाम पब्लिक को यानी कि रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो शहबाज कलंदर ने उसको वार्निंग दी थी। अब हम कह रहे हैं कि भी अब उस तरह का शहबाज कलंदर की हमें इधर जरूरत है, वो आके जो है ना वो चौपट राज है जो वो उसको खत्म उसने कर दिया था, सिर्फ आसाम उसने उल्टा किया था यूं करके, और उसका पूरा माली आज तक वो लगा रहे हैं, उसका खोज दीवारें उसकी उल्टी पड़ी हुई है, आज तक खोज लगा रहे हैं। वो शहबाज कलंदर की कलंदरी जोश मारा उसने। अभी यहाँ पे हमारे जो अवाम है उसको मतलब 2 नंबरी पे देखे ना, पूरा माशरा उसको मतलब करप्ट कर दिया गया है। अभी
पीर साहब ये साईं अभी कह रहे थे कि हॉस्पिटल में ऊपर से लेके नीचे तक वो साथ डोंस भी वो जमा रहा है कि मेरा क्या कर लोगे भाई, मेरे आप मेरा क्या कर लोगे। मतलब यहां तक नौबत पहुंच गई है कि उसकी मतलब कोई सजा का तो मतलब तस्वीर ही नहीं है। जब तक हम ये भी यहाँ पे रंडी रोना रो रहे हैं इसी स्टूडियो की वसातत से कि जब तक आप सख्त सजाएं नहीं देंगे, इस माशरे में सख्त सजाओं का निजाम राइज नहीं करेंगे, आपको मतलब ये पब्लिक रिलीफ जिसकी आप बात करते हैं ये आपको मिलने वाला नहीं है। और ये पब्लिक रिलीफ आपके पड़ोसी ममालिक में, चाइना आपका 1 घंटे की मुसाफत है, आधे घंटे की मुसाफत है, दुबई में अबूधाबी में आप चले जाते हैं फ्लाइट से, आप वहां से क्यों नहीं ये निजाम ले लेते कि भी किस तरह वो अपने अच्छे तरीके से इसका ये खाने वाला निजाम अगर आप खत्म कर दें, ये जो खाओ पियो प्रोग्राम है, और मैं बड़े वसूख से यकीन से मैं कह सकता हूं कि हर गरीब को मतलब हर चीज हॉस्पिटल में दस्तयाब होगी और इंसाफ उसको मतलब हर महकमे में मिलेगा। वो जाएगा, न्यूजीलैंड में आप चले जाएं, उसको वो बंदा आ रहा है तो वो खड़ा होता है, इंतजार में खड़ा होता है कि वो बंदा नहीं आया काम। पहले तो वहां पे लोगों के खुद ब खुद ही जो है ना वो काम हो रहे होते हैं। जिसका कोई फंस वाला मामला है वो जाएगा, वो इंतजार में होगा, वो गाइड करेगा और उसको रिलीफ दे के वहां से मतलब भेजेगा। ये निजाम इस मुल्क में जब तक राइज नहीं होगा, ये सियासी आपके ये उलझाव अभी देख लें, अभी आप सियासत की बाबर साहब बात कर रहे थे कि ये आपस में जो है ना वो मतलब लगे हुए हैं, यूं गई और उसमें पब्लिक का ताकि जो है ना उधर ध्यान जो है ना बटाने के लिए उधर हो जाए। जितनी नाइंसाफियां इस मुल्क में चल रही हैं, अगर ये किसी और मुल्क में हो तो ये इनकलाब जो है ना 1 मिनट में मतलब इनकलाब आ जाए। क्यों कि इसका एजुकेशन आप जब तक निजाम आप सीधा नहीं करेंगे और आपका एजुकेशन सिस्टम आपको इनकलाबी नहीं मुयसर कर रहा, वो आवाज बुलंद करने के वो काबिल ही नहीं होता। जब वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर लेता है उसको इतना मतलब दिमागी तौर पे उसकी ब्रीफिंग कर दी जाती है कि वो आवाज ही बुलंद ना करे। ठीक है। और फिर कानून ऐसे मतलब बना दिए जाते हैं कि जब आप बोलेंगे आप मतलब किसी जज के, किसी जनरल के, ये चार जीम है और जिन्होंने इसको खराब किया ना, जिसमें जर्नलिस्ट का भी जीम आता है जो है ना, कि वो जिसे अभी राया साहब कह रहे थे तुसी वो ब्लैकमेलर हो फलान, मतलब लोग हैं इसमें भी मछली है। 4 जीम है, इन जीमों ने इस मुल्क को जो है ना वो तबाह किया हुआ है, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। संगरूर निजाम हो चुका है और यहाँ पर जो चोरी कर रहा है वो साथ साथ सीना जोरी भी कर रहा है, साथ साथ ये चैलेंज भी कर रहा है कि जो कुछ आपसे हो सकता है कर रहे हैं। लाइव स्टूडियो में अब्दुल खालिद दरवेश भी मौजूद है। दरवेश साहब, हेल्थ के सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं, ये जो मौजूदा निज़ाम हमारे पास मौजूद है, अभी इतलात यही आ रही है कि कोरोना की नई लहर वो भी दस्तक दे रही है, तो हमारा ये जो एक स्ट्रक्चर है क्या ये इस काबिल है कि नई लहर का सामना कर सके? हमने पुरानी जो लहरें आई, जो कोरोना आया, उससे कुछ सीख के अपने सिस्टम को बेहतर किया? सिस्टम में कई कमजोरियां होंगी, लेकिन असल मसला ये है कि सिस्टम से वाबस्ता अफराद जो हैं उनके जो रवैये हैं, उनका जो तर्ज फिक्र है, उनका जो तर्ज अमल है, वो असल में जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो तो ये है। और आप देखेंगे अभी ये जो हमारा DHQ है, ये कुछ ही अर्सा पहले इसको नया बनाया गया, सारी मशीनें यहाँ प्रोवाइड की गई, लेकिन जो हैंडलर्स हैं, जो वहाँ पे अफरादी कुव्वत है, जो वहाँ पे स्टाफ है, अगर उसके रवैये गैर जिम्मेदाराना रहते हैं, अगर उनको फिक्र ये है कि कम से कम मरीज को निपटाना है, अगर कंसल्टेंट ये सोचता है कि मैंने कम से कम मरीजों को देखना है ताकि शाम मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं, जब स्वीपर और गार्ड तक ये समझते हैं कि यहाँ हमने कुछ ऊपर से कमाई करके जाना है, तो फिर उस सूरत के अंदर आप कुछ भी कर लें तो फिर मामला बेहतर होने वाला नहीं है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आप आज हम लोग हेल्थ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और हेल्थ हालांकि उन शोबों के अंदर है कि जिनको इमरजेंसी की बुनियाद पे, जिनको टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, जिनको पहली तरजीह बनाया जाना चाहिए, इंसाफ का महकमा पहली तरजीह होनी चाहिए, एजुकेशन का महकमा पहली तरजीह होनी, टॉप प्रायोरिटीज होनी चाहिए ना। वो जस्टिस सिस्टम है, वो एजुकेशन और वो हेल्थ है,
اور یہاں پہ آپ ایک سے ایک جو ہے آپ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں ایک سے ایک زیادہ بدتر نظر آتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے, ایک تو ہمارا حکمران طبقہ ہے کہ جیسے حکمران طبقہ اس کو ذاتی اور گروہی مفادات سے وہ باہر نکل کے سوچتے ہی نہیں, they don't think beyond that. جنرل پبلک کی باری نہیں آتی. یہاں پہ جیسے ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر طبقاتی نظام عملاً قانون سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے, لیکن پریکٹیکلی یہاں پہ طبقاتی نظام ہے. اور جس طبقے سے آپ بلونگ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو جو سرکار کی مشینری ہے, وہ ایک گارڈ ہو, وہ ایک سویپر ہو, وہ ڈپٹی کمشنر ہو, وہ ہاسپٹل کا MS ہو, وہ کنسلٹنٹ ہو, آپ کو آپ کا دیکھ کے, آپ کا مرتبہ دیکھ کے تو وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ذرا پاورفل طبقات کو بلانگ کرتے ہیں ان کے کام تو ہو ہی جاتے ہیں, اور بعض اوقات شاید ان دفاتر کو وزٹ کیے بغیر بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو کامنر ہے کہ جو دہاڑی کمائے گا تو شام کو کھائے گا, اس بیچارے کے جو حالات ہیں اور جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, میں پورے وثوق سے, میں پورے یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مغربی دنیا جو ہے وہاں پہ جو کتا اور بلہ جو ہے ان کے جو پٹس ہیں ان کو ہمارے جو پاکستانی, جو ایک عام پاکستانی ہیں, ان کی نسبت بہتر ٹریٹ کیا جاتا ہے, ہاسپٹل ہو یا کچھ اور ہو. اب اس صورتحال کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی بدترین اور اتنی کہہ لیں کہ گھناؤنی قسم کی جو صورتحال ہے وہ دنیا کے ہم بدترین ممالک کی جو کیٹیگری ہے, ہم شاید واحد تو نہیں ہوں گے, پاکستان جیسے اور ممالک بھی ہوں گے, لیکن بدقسمتی سے اگر آپ 10 کیٹیگری بھی بناتے ہیں تو شاید پاکستان آخری کیٹیگری کے اندر آئے گا. ہمیں ذرا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سے سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اور پھر دیکھیں کہ جب تک یہ سارا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا تو پھر جو طاقتور لوگ ہیں وقتاً فوقتاً وہ بھی رگڑے جاتے ہیں, آف اینڈ آن وہ بھی رگڑے جاتے ہیں, اور وہ جب رگڑے جاتے ہیں تو پھر اخبارات کے اندر آتا ہے, پھر ٹیلی ویژن کے اندر آتا ہے, لیکن ایک عام آدمی بیچارہ روزانہ کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے. اچھا قائد صاحب, نظام کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یاد ہے اتھارٹیز بنائی گئی تھی, تو اس کے ساتھ کیا تبدیلیاں آئی, کیا ہماری نہیں ہوا ہے اس میں. یہ حالانکہ یہ تھا کہ بلکہ بڑی اچھی بات کیا 2015 کا بلدیاتی نظام, یہ اب شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے, تو اس وقت یہ تھا کہ یہ ہیلتھ اور یہ ایجوکیشن ہیلتھ اتھارٹیز بورڈ لگ گئے ہیں. ابھی وہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ وہ بھی بیٹھے ہیں, یہ اس وقت انہوں نے بنائی تھی. تو پھر اس کا کیا ہے, چیف اس کا سربراہ کون ہے, ڈپٹی کمشنر اس کا سربراہ ہے. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں, یہ جمہوریت کے چیمپئن اور بڑا اس کا, تو کیوں نہ آپ کو یہ جو سارا سیاسی نظام ہے اس کو نہ آئین ہے نہ قانون ہے, تو یہ سارا منتخب نمائندوں کو یہ طے شدہ منصوبے کے تحت, حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ بھائی آپ ایک ملک کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کے آپ یہ نون, ان کو تو سبق اس وقت آیا نا جب یہ جلا وطنی اور یہ سارا, پہلے حالانکہ مشرف دور میں بھی جلا وطنی ان کی ہوئی تھی, تو سبق لے کے چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جاتا, بلدیاتی الیکشن کرائے جاتے. تو یہ مشرف کا ہم ادھر بات کرتے ہیں کہ یہ قدرے ایک بہتر نظام تھا جس نے عوام کو کافی ریلیف دیا, یہ 2000 سے یہ 6-7 تک جو چلا ہے. تو یہ تو آپ باقی 15 نظام ان تمام منتخب نمائندوں کو ڈپٹی کمشنر اور کمشنر کے ماتحت کر دیا گیا. ادھر آپ ریکارڈ پر ہے, یہ چودھری سجاد چیئرمین, میں بار بار دہراتا ہوں, وہ خود آن ریکارڈ ہے کہ میں ایک سویپر بھرتی کرنے کا بھی میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو پھر آپ سے اندازہ کر لیں کہ یہ سارا یہ حکمران, یہ سارا ایک مطلب ایک نظام بالکل اب یہ تفن دادا بدبو پھیل گئی ہے بالکل. اب یہ تجربے کار ہیں, آپ دیکھ لیں, مجھے یقین ہے کہ یہ اب لا آف دی نیچر, قدرت کا قانون, یہ اب حرکت میں آنے والا ہے, اور بالکل مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اچھی صورتحال, کیونکہ یہ جس طرح ظلم زیادتی جبر مہنگائی اور سارا, یہاں تو یہ ہے نا کہ چلو ایک ملک پہ آفت آ گیا تو چلو, تو یہ اللہ آپ حکمرانوں کے دیکھیں, پروٹوکول دیکھیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں زبانی 2.5 ارب وہ خرچ کر رہا ہے جی بلاول بھٹو, عمران خان صاحب, آپ ادھر کہہ رہے ہیں, تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے میں تو اپنی جیب سے ادا کر رہا ہوں. تو یہ جیب سے ادا کرنے والا کوئی ایسا ماحول سامنے نظر آئے نا جی, کہ اپنے جو مشکل حالات ہیں معاشی, اس میں کوئی نظر آ رہا ہے حکومتی مشینری کہ بھائی اس کے کٹ مار کے کوئی بجلی کام چلائیں یا کوئی اور کرے. آپ دیکھیں اے سی تو ہیٹر سارے, کوئی بندہ بیٹھا نہیں بیٹھا یہ چل رہے ہیں. تو یہ ایک ملک کی معاشی حالت جس طرح ہے, اس پہ جب اوپر کا طبقہ عمل نہیں کرے گا تو نیچے عوام تو ویسے ہی پس کے رہ گئے ہیں.
میر صاحب سوری میں آپ کی بات صرف ایک مجھے ذہن میں بات آ گئی ہے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ زبان خلق نکارا ہے خدا. اوپر والے کہہ رہے ہیں جیسے بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جی ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے عوام پہ خرچ کیے, عوام کی چیز ہی ان کو سنائی نہیں دے رہی کہ جو کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں مل رہا, ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اب ان کی مینجمنٹ کا حال دیکھیے کہ ہمارے چکوال چیمبر آف کامرس نے 6 ECG مشینیں دی تھی. اب اس وقت آپ یقین کریں کہ آپ کو ہمیں خوف آتا ہے سن کے کہ ایک ECG مشین ہے, اس کو دوڑا کے ادھر لے کے جا رہے ہیں, اس کو دوڑا کے ادھر لے کے جا رہے ہیں, پتہ ہی کون نہیں کدھر آ رہی ہے کدھر جا رہی ہے. کئی ایسے لوگ جن کی شکایات زبانیں عام بھی ہیں لیکن وہ وہاں پہ ارباب اختیار ہیں, ان کو بالکل 1 منٹ کے یہاں سے وہاں نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہو گیا صورتحال بنی ہوئی ہے جناب. جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, جس کی طرف خواجہ صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے کہ اب معاملات وہ درستگی کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ معاملات خرابی کی آخری سطح تک پہنچ گئے ہیں. اور جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے تو انہیں کیونکہ صحت کی سہولیات دستیاب ہے, اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی یہ سہولیات مفت دستیاب ہیں. اسی طرح اگر ہم کھانے پینے کی بات کریں تو ان کو یہاں بھی سبسڈائز چیزیں مل رہی ہیں, ہوائی سفر مفت ہیں, تو انہیں وہ مشکلات کا سامنا نہیں ہے جس کا سامنا عام آدمی کر رہا ہے. لیکن یہ جو سسٹم ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.